Hello students, I am Chiranjit Nath from EduCamp and today I will teach you about human heart, which is very important and very interesting topic from exam point of view. And हर साल मेडिकल एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग टॉपिक, द ह्यूमन हार्ट। So, the heart is a mesodermally derived organ. Okay? So, हमारा जो हार्ट है वो कहाँ से derive हुआ है? From the mesoderm. Okay, so what is mesoderm? As we know that in the whole living world, the organism is classified into the diploblast and the triploblast. Okay, in diploblast, the organism have two germ layers named as the inner endoderm and the outer is ectoderm. Okay, in between these two layers, the layer is non-living in case of diploblast, whereas in triploblast, the middle one, this is the mesoderm and this is now the living layer. Okay, so triplo means tri, so it have three germ layers. Okay, the outer is the ectoderm, in between is the mesoderm and the inner is the endoderm. Okay, so and basically all the vertebrates are triploblast, whereas the invertebrates are diploblast. Okay, so during embryonic development of humans, three germ layers are formed. Okay, when the embryo develop in humans in the mother womb, what happens? The three germ layers are formed. Okay, what happens during gastrulation? Due to some morphogenetic movement, the three germ layers are formed, named as the ectoderm, the mesoderm, and endoderm. Okay, and you will find it interesting that these three germ layers have predefined fates. What does it mean? कि इनकी भविष्यवाणी जो है ये पहले से हो जाती है कि इन्हें क्या बनना है। ठीक है, तो they have predefined fates. And क्या fates है उनके? कि the ectoderm, the outer layer, ये क्या बनेंगे? Hair, skin, nails and nervous system. Whereas the mesoderm or the middle layer, ठीक है, ये क्या क्या बनेंगे? Circulatory system. Okay, the circulatory system which includes heart. ठीक है, circulatory system क्या क्या है? The arteries, veins, capillaries and all, and including heart as well. ठीक है, तो हमारा जो हार्ट है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? The heart is a mesodermally derived organ. ठीक है, and और क्या बनाते हैं mesoderm? So the mesoderm, the fate is to be skeletal system, muscular system and the outer layer of the lungs. Okay, and the innermost layer, that is the endoderm, okay, it forms the digestive system, liver, pancreas and lungs inner layer. Okay, so now this you can see, this is the human fetus which is attached to the endometrium wall of the mother. Okay, and this is the placenta through which it is the baby is connected, the fetus is connected with the mother. Okay, and this yellow one, this one, follow the pointer, this yellow one, this one is the endoderm. Okay, this one is the endoderm, whereas in between this brown one, this is the mesoderm. Okay, and the outer one, the blue one, is the ectoderm. Okay, hope so that you understand it. Let's move to the next slide. Okay students, now let's find out where the heart is exactly situated in the human body. So from this image, you can know that the heart is situated inside the chest or the thoracic cavity. Okay, and where it is exactly situated? It is exactly located in between two lungs. This is the right lungs and this is the left lungs, and in between you will find the heart. It will be resting over a thin membrane called diaphragm. Okay, but the question is, the heart is slightly tilted toward its left. So why? You have the answer? Okay, let me answer you that the left ventricle has very thick, okay, the answer is the left ventricle has very thick cardiac muscles or myocardium to pump oxygenated blood to the whole body with highest pressure, therefore it is tilted to its left. Okay, so let me explain you. From this picture you can see that as we know that the heart is four chambered, the upper is the right and the left atrium and the lower is the right and the left ventricles.
But if you compare the walls of the ventricle, so you will find that the left ventricle wall is much more thicker than the right ventricle. So question is why? Because this left ventricle has to pump the oxygenated blood which is coming from the lungs, okay, from this lungs. So it has to pump its blood with highest pressure so that it reaches to the whole body. Okay, that's why there is a need of much more myocardium muscles, okay, or the cardiac muscles over here, over the left ventricle, so that it pumps blood which with much more highest pressure, okay, than the other chambers. Okay, so that's why it's tilted to its left. So it's much more thicker, so that's what it is tilted to the left. Okay, see. Okay, let's move to the next slide. So now let's discuss about the pericardium. So what is pericardium? The pericardium is the membrane that surrounds and protects the heart. Okay, as we know that heart, it have a outer covering. Okay, and it is called the pericardium. Okay, it is a membrane like structure that surrounds and protects our heart. So the pericardium consists of an outer fibrous pericardium, okay, which is composed of the tough, inelastic and irregular connective tissue. Okay, as if we can take an analogy with our helmet, as the helmet is a headgear, okay, it protects our head. Just like that, this outer fibrous pericardium, which is as tough as helmet, and it's it's just save our heart. Okay, it protects our heart. So that's why it's called the outer fibrous pericardium. Okay, beneath that you will find the serous pericardium, which forms a double layer around the heart, the outer parietal and the inner visceral layer. Okay, and in between this layer you will find a pericardial cavity, and it is filled with, okay, it is filled with the pericardial fluid. Okay, see from this picture, okay, follow my pointer. This is the fibrous pericardium, the outer one. Okay, beneath that you will find the outer serous pericardium, okay, which is the parietal. Okay, the parietal layer of serous pericardium, this one, the pink one. Okay, and in between you will find the pericardial cavity, which is filled with the pericardial fluid. Okay, and then you will find the visceral layer of the serous pericardium. Okay, the inner layer of the serous pericardium. The serous pericardium is double layer, as we know. So the outer is the parietal layer of serous pericardium, and the inner one is the visceral layer of the serous pericardium. And in between these two layers, you will find the pericardial cavity. Okay, and it is filled with the pericardial fluid. So what is the function of the pericardial fluid? The function of the pericardial fluid is it's act like a shock absorber. Okay, shock absorber, or acts like a cushion, so that if some impact, okay, comes from outside, and if this layer, okay, have a friction with themselves, so what happen? It will damage our heart. So due to the presence of this pericardial fluid, what happens? It reduces the friction between the parietal and the visceral layers. Okay, so now we will discuss about the layers of heart. Okay, we were discussing about the pericardium layers. Now we will discuss about the layers of heart. So the layers of heart composed of epicardium, myocardium and endocardium. So the outer epicardium, it is the same, the visceral layer of serous pericardium. Okay, the pericardium का जो अंदर वाला जो लेयर था, ठीक है, वही वाला लेयर हार्ट लेयर का सबसे आउटर लेयर होगा, द हार्ट वॉल का सबसे आउटर लेयर होगा, ठीक है. एंड सेकेंड वन इज द मायोकार्डियम, ओके, एंड थर्ड इज द एंडोकार्डियम. सो एक एक करके समझाते हैं. तो द आउटर वन इज द एपिकार्डियम, इट इज द आउटर वॉल ऑफ द हार्ट, ठीक है. ये जो सबसे ये पर्पल वाला जो है, ये हार्ट वॉल का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, ठीक है. द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड विसरल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम एंड इट कंसिस्ट ऑफ मेसोथीलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है. और ये इंटरेस्टिंग है कि दिस मेसोथीलियम, ठीक है, इस
ये वॉल में, ठीक है, मेसोथेलियम मिलता है हमें, जो क्या करता है, सेक्रीट करता है द पेरिकार्डियल फ्लूइड को, ठीक है। जो पेरिकार्डियल फ्लूइड इसमें भरा हुआ है पेरिकार्डियल कैविटी में, ठीक है, तो इसका सिंथेसिस कहाँ होता है, एपिकार्डियम में, इन द बाय द मेसोथेलियम। ओके, नाउ द सेकंड वन इज द मायोकार्डियम, and myocardium, this is the most important one, that it is the middle wall of the heart which makes 95% of the heart, ठीक है। हार्ट का जो 95% पार्ट है वो कौन बनाता है, मायोकार्डियम, ठीक है। एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग एक्शन, ठीक है। अब इस पिक्चर में देखिए, दिस स्पैन, दिस रेड वन, फ्रॉम हेयर टू हेयर, ओके, ये स्पैन जो है ये पूरा मायोकार्डियम है, ठीक है। एंड इट मेक्स द 95% ऑफ द हार्ट, एंड ड्यू टू दिस मायोकार्डियम ओनली, दिस कार्डियक मसल्स ओनली, व्हाट हैपेंस कि ये जो पंपिंग एक्शन होता है डिफरेंट चैम्बर्स में, इट इज ऑल ड्यू टू द मायोकार्डियम वॉल, ओके, मायोकार्डियम सेल्स और द मायोकार्डियम मसल्स। ओके, नाउ द एंडोकार्डियम, सो द एंडोकार्डियम इज द इनर मोस्ट, सबसे अंदर वाला, ये जो एकदम सबसे पतला जो दिख रहा है, दिस वन इज द एंडोकार्डियम। ओके, सो द एंडोकार्डियम इज द innermost wall of the heart composed of thin endothelium lying on a thin layer of connective tissue, ठीक है। सो ये सबसे innermost part है। ओके, let's move to the next slide. Okay, now we will discuss about the anatomy of our heart. Okay, as we know that the heart is four chambered, the upper is the right and the left atrium, and the lower is the right and the left ventricle, which is separated by the interventricular septum, the lower chambers, and the upper chambers are separated by the interarticular or the interarterial septum. Okay, now let's study about in the details about the right atrium. So the right atrium, it receives deoxygenated blood from the whole body via superior vena cava and inferior vena cava, as well as the coronary sinus. Okay, this blue one, okay, focus over here. See this blue one, this one is the superior vena cava and this one is the inferior vena cava, and this is the coronary sinus. Okay, now what happens when the deoxygenated blood comes from the upper body part? Okay, it is received by the superior vena cava, and from the lower body part it is received by the inferior vena cava. Okay, so what happens when this deoxygenated blood received by this inferior and the superior vena cava, it is finally drained to the right atrium. Okay, right atrium. So let's read it out. Receives deoxygenated blood from the whole body via superior vena cava, inferior vena cava, and coronary sinus. Now it pumps blood into right ventricle through the tricuspid valve during auricular systole or contraction. We call it contraction. Systole means contraction, and ventricular diastole. Diastole means relaxation. Okay, the contraction and relaxation, we call it systole and diastole. Okay, now it pumps blood into the right ventricle. So what happens when it receives, this atrium receives the deoxygenated blood from the inferior, superior, inferior, and the coronary sinus. Now the deoxygenated blood is squeezed out. Okay, when this the wall of the right atrium contracts, so what happens, the blood inside it is squeezed out through the tricuspid valve. Okay, some valve is there. Okay, it is kind of an opening, and from this opening it is pushed into the left ventricle. Okay, then it is separated by the left atrium. It is separated from the left atrium by the interarterial septum. Okay, which I have discussed it before. Okay, next we move to the next slide. The next slide is the about right ventricle. Okay, so right ventricle receives blood from the right atrium. Okay, now we have understood that as the right atrium squeezes its blood, so the right ventricle receives the deoxygenated blood now. So it receives blood from the right atrium. Okay, now this ventricle, the right ventricle, is separated from the left ventricle by the interventricular septum. See this, okay, septum. So what is the function of the septum?
The function of the septum is it doesn't allow the mixing of the blood, as the right atrium and the right ventricle, okay, is filled with the deoxygenated blood, and the left atrium and the left ventricle is filled with the oxygenated blood. So if this septum is not there, so what happens? There is a mixing of deoxygenated and the oxygenated blood. Okay, now let's move. It pumps out blood through the pulmonary valve into a large artery called pulmonary trunk, which divides further into right and left pulmonary arteries. Okay, what happens now when this ventricle is filled? Okay, when this ventricle is filled with the deoxygenated blood, okay, now what happens? This ventricle now undergoes systole, that is contraction. So when it is undergoing contraction, and this opening, this tricuspid valve which was opened before, will close, and now what happens? The blood need to be escaped, so it will escape through the pulmonary valve, or we call it semilunar valve. Okay, and from the semilunar valve, this blood will go through the pulmonary trunk. This is the pulmonary trunk, which is further divided into the left and the right. Okay, left and the right pulmonary trunk. Okay, this one, this is the left, this is the right pulmonary trunk, and this is the left pulmonary trunk. So it will go to the lungs, okay, where the exchange of the gases takes place, as it is carrying the deoxygenated blood. Okay, so it will carry the deoxygenated blood to the lungs, and from where the oxygenated blood will come. Okay, now let's move to the next slide. Okay, now we will discuss about the left atrium. The left atrium receives oxygenated blood from the lungs through the 4 pulmonary veins. Okay, 4 pulmonary veins, the 4 in number, and 2 from each lungs. Okay, if we see, okay, let me draw it out. See, if we see, this is the left lungs. Okay, this is the left lung, and this pulmonary trunk. Okay, and over here, this is the, it's not a kidney. Okay, it's a lungs. See, so this is the, let me write it, this is the right lungs and this is the left lungs. Okay, so what happens when the, wait, let me choose the pointer. Okay, so what happens, in previous slide we have seen that the deoxygenated blood, which is pushed through the semilunar valve to the pulmonary trunk, okay, which is further divided into the left and the right pulmonary trunk. So the deoxygenated blood will reach the each lungs, the left lungs and the right lungs. Okay, so where the gases exchange takes place. Now what happens in the left atrium? Okay. 1 minute. So what happens in the left atrium? So the left atrium receives oxygenated blood from the lungs through 4 pulmonary veins. So this one, 1, 2, 3 and 4. This one. This 4 pulmonary veins, okay, reaches the each lungs. Okay, same way like this. If I suppose this is the lungs, this is the lungs, okay, where the pulmonary veins as well as the pulmonary trunks, the artery will reach the each lungs. This is the right one
and this is the left one. Okay, so this each pulmonary veins will reach each lungs. Okay, and two of them each. Okay. So as the blood passes from the left atrium into the left ventricle through the bicuspid valve or the mitral valve. So now what happens when the oxygenated blood from the each lungs come to the left atrium. Okay, from the right lungs and from the left lungs, when the oxygenated blood comes into the left atrium, what happens? It now the atrium, the wall of the heart wall of the atrium will undergo systole or contract. So what happens? The blood, the oxygenated blood inside this left atrium will squeezed out. Okay, squeezed out into the left ventricle, and it will come through the bicuspid valve, or we call it mitral valve also. Okay, hope so that you understand. Let's move to the next slide. Now, lastly, we will see the left ventricle, which is very important. The left ventricle, it is the thickest chamber. Okay, we have discussed in the previous slides that it have the thickest chamber of the heart, and blood passes from the left ventricle into the aortic wall into ascending aorta. So what happens as this contracts, as the left atrium, this one is the left atrium, as it contracts and squeezed out its blood, okay, into the left ventricle. Now what happens? The bicuspid valve or the mitral valve will close, and it will, when it will be closed, what happens? Now the wall of the left ventricle will undergo contraction or systole. So the blood into the inside the left ventricle need to escape, but the opening which was opened previously is closed. It is closed, so it will find an opening. So what is the opening? The opening is the aortic valve. Okay, the aortic valve. It is a kind of a semilunar valve also. Okay, so what happens when it opens? When the valve opens, the blood inside the left ventricle is pushed with highest pressure into the aorta, and this aorta, okay, it will supply the oxygenated blood, okay, oxygenated blood to the whole body, okay, as well as the heart too. So students, let's understand the heart valves now. So basically the heart has two pair of valves. Okay, wait, let me take the pointer. Okay, so the one pair of atrioventricular valves, also known as AV valves, which maintain unidirectional blood flow between atria and ventricles. Okay, so this is the AV valves. Okay, from the valves between the atrium and the ventricles. This one, the mitral valve and the tricuspid valve. Okay, it connects the atrium with the ventricles. Okay, and the function of the AV valve is that it maintains the unidirectional blood flow between the atria and ventricles. So as the blood is pushed into the ventricles, what happens? When the ventricle contract, the blood need to escape, but due to the presence of this AV valves, that is mitral and the tricuspid valve, what happens? It doesn't, the valve doesn't allow the blood to escape into the atrium. Okay, so the function of the AV valves is to maintain the unidirectional blood flow between the atria and ventricles. The AV valves on the right side is tricuspid valve, and the left side it's the mitral or the bicuspid valve. Okay, now the other pair of valve is called the semilunar valves, which allow ejection of blood from the ventricles but prevent backflow into the ventricles. So what happens? The other pair of valve is the semilunar valve, which is the pulmonary and the aortic valve. Okay,
So what happens when the ventricle contract, okay, the ventricle contracts or undergoes systole, what happens? As we know that the mitral and the tricuspid valve are closed, so that the blood doesn't flow inside doesn't go back to the atrium, but it need to escape, so it escape from this semilunar valve. This is the semilunar valve, so this one is the aortic valve and this one is the pulmonary valve from the right and the left atrium at the same time only. So what happens when this valve opens, the blood flows into the aortic valve, and once it is opened and the blood flows from this aorta and the pulmonary trunk, what happens? Now the valves are closed so that it doesn't comes back into the ventricle. Okay, so it is just acting like a gate. If you take analogy with the window pane, as we know that the window pane, what does it do? It doesn't allow the window to move beyond its position. Okay, so just like that, this valve also acting like a window pane to the heart. Okay, one pair of valve is present between the atrium and the ventricles, so that once the blood is pushed into the ventricle, it doesn't go back to the atrium. Okay, but the other pair of valve is the semilunar valves, which is the pulmonary valve and the aortic valve. Okay, so it doesn't allow the blood to come back into the ventricle once it is pushed into the aortic and the pulmonary valve. So the semilunar valves, the pulmonary valves located at the exit point of the right ventricle. Okay, see, this is the exit point. This is the exit point of the right ventricle. Okay, when the blood comes into the ventricle, so it just flows and exit the left ventricle, exit the right ventricle through this pulmonary valve. Okay, and whereas the semilunar valve, which is also called aortic valve, located at the exit of the left ventricle, whereas the gate, okay, which is present as an exit of the left ventricle. Okay, let's move to the next slide. Okay, now let's just superimpose this two image. Okay, see, this valve. Okay, follow my pointer. This is the mitral valve, okay, or the bicuspid valve, and this valve is the tricuspid valve. See the opening of this two at the same time, it is opening at the same time. Okay, and this is the semilunar valve. Okay, this one is the pulmonary valve and this one is the aortic valve. Okay, now let's superimpose this two image, this one and this one. So see, first what happens, the pulmonary vein, okay, the oxygenated blood coming from the each lungs, it enters the pulmonary veins and reaches the aorta. Okay, and it is interesting to find that some volume of blood is always present in the left ventricle. Okay, so we will discuss in the further slides. Okay, now let's just focus on this. Okay, so once this is filled, once the atrium, the left atrium is filled, what happens? Now see, now this is opened. This one is, what is this? This is the bicuspid valve or the mitral valve. So once it's opened, so what happens? The blood enters the left ventricle. Okay, so once the left ventricle is filled with the blood, so what happens? Now the left ventricle will contract, and once the left ventricle will contract, see, when it's contracting, this is opening. Okay, when it's contracting, it's opening. See, okay, so once it is contracting and this valve is opening, what is this valve? This is the aortic valve. This is a one kind of a semilunar valve. So once it's opening, what happens? So see, this is opened, so the blood is exiting the aorta and it's going to the whole body. See, this one going to the whole body, but it will not as the window pane or the valve is closed. So what happens? The blood will not come back. Okay, so this valve, the function of the valve is the unidirectional flow of the blood. Okay, now let's just move to the next
Now what happens in the right atrium? So from the superior and the inferior vena cava, once the blood is drained into the right atrium, so once it's filled, now see, so this is squeezed, this is contracting, undergoing systole, the atrium is undergoing systole. As it is undergoing systole, what happens? The blood inside the right atrium will squeezed into the right ventricle, and the tricuspid valve will open. Okay, see this, it's opening and the blood is entering. So the blood is entering. See now here, see the blood is entering, the blood has entered. Now what happens? As the blood will enter, now this ventricle will undergo contraction. See, it is undergoing contraction. As it is undergoing contraction, so what happens? This pulmonary valve will open. So as the pulmonary valve will open, so the blood will exit, because this is closed. See, this is closed, but this is open. So what will happen? It will escape through this, okay, through the pulmonary trunk. See this picture, see this arrow. So now it has exited through the pulmonary valve, okay, and it is exiting through the left and the right pulmonary trunk, okay, pulmonary trunk, and it will reach to the each lungs. Okay, hope so that you understand this. Okay, let's move to the next slide. Okay students, now let's understand the mechanism of opening and closing of the valves, and it is done with the help of chorda tendineae and papillary muscles, and this structure are only found in mitral and the tricuspid valve. Okay, when the arteria contract, what happens? Chorda tendineae are slack. Okay, slack means it contracts, it's means the thread are not so tight, it is not having tension. Okay, and hanging thread of a connective tissue. Okay, when ventricle contracts, what happens? The blood is pushed up against the bottom and the valve leaflets, causing them to close and balloon up, okay, like a parachute. Okay, I will explain it, no need to worry about. Then the papillary muscle contract, pulling on the chorda tendineae to keep the valves closed. Okay, so what happens? See, from this heart you can see this one, okay, this white like structure, these are the thread, okay, and this is the valve, okay, and this valve is attached to the thread like structure called chorda tendineae. Okay, these thread like structures are called chorda tendineae, and it is attached or anchored to the heart with the help of the papillary muscles. These are the papillary muscles, this one, these are the papillary muscles. Okay, so what happens when the ventricle contracts, when the arteria contract? Okay, when the arteria contract, what happens? The chorda tendineae are slack, means they are not having tension in the chorda tendineae, thread are not in a tension, okay, mode, and the hanging threads of the connective tissue, and they are hanging, okay, it's not having any tension, and the blood comes in easily, okay, through this bicuspid or the tricuspid valve. But now when the ventricle contract, okay, now when the ventricle contract, what happens? The blood inside the ventricle will squeezed, and when it is squeezed, the blood need to escape. So what will happen? It will just push, okay, it will just push the valve, okay, from the inside. So as the ventricle contract, the blood pushes up against the bottom, okay, it will push here. Okay, so what happens if it will push here? What happens? It's open like a parachute. See, it will bulges from the outside and invaginates from the inside. And what happens to the chorda tendineae? So let's see it. So the ventricle contracts, the blood pushes up against the bottom of the valve leaflets, causing them to close and balloon up like a parachute. Okay, now what happens? The papillary muscle contracts. Okay, now what happens? The papillary muscles, okay, is contracting when the blood is pushing the valve, okay, from inside, and due to its contracting, what happens? It's pulling the chorda tendineae, okay, that this thread like structure, it will pull. Okay, just think the man is pulling the thread, okay, so what happens? There is a tension in the thread, okay, just like this chorda tendineae are contracting, so that the thread are means it will having a tension now. Okay, so due to the pulling of the chorda tendineae, so what happens? The valve is closed.
so the valve is closed due to the pulling of the chorda tendineae. So just think, if we don't have this anchor, this papillary muscles, and this papillary muscle doesn't contract, so what happens? There is no tension in this chorda tendineae, and if there is no tension in the chorda tendineae, what happens? The blood will escape out. Okay, the blood will escape out into the atrium again. Okay, so it is not it's not good. Okay, right. So what happens if we cut this? Okay, just think, if we cut this chorda tendineae from the papillary muscles, what happens? It will just look like the umbrella. When you hold it in a storm, what happens? It opens inside out. So just like that, this valve will open inside out into the atrium. Okay, and it is basically, normally it is what happens, it is opening into the ventricles due to the presence of this papillary muscles and the chorda tendineae. But if this thread are broken, or this thread are cut, or the papillary muscles are not contracting, what happens? This valve will open into the atrium. Okay, hope so that you understand this. Okay, let me know in the comment box if you have any problem or any doubt. Okay, let's move to the next slide. So guys, that was all about the heart anatomy. Now let's deal with the pulmonary circulation and systemic circulation. As name suggests, the pulmonary circulation means the circulation coming from the or going to the lungs, and the systemic circulation means the circulation going or coming from the system or the whole body. Okay, so follow the arrow. This is the pulmonary circulation, and the blue one signifies the deoxygenated blood, and the red one is the oxygenated blood. See, the pulmonary veins, okay, which are 4 in numbers, which is coming to the right, coming to the left atrium. Okay, see, from the pulmonary circulation from the each lungs, the oxygenated blood is coming to the left atrium, and from the whole body, from the right ventricle, the deoxygenated blood is coming to the lungs. So the deoxygenated blood coming from the right ventricle to the lungs, and from the lungs the gaseous exchange takes place, and the oxygenated blood coming from the left lungs. Okay, the oxygenated blood from the left lungs, it will go to the left atrium. Okay, so this was all about the pulmonary circulation. Whereas in the systemic circulation, what happens? Going to the whole body. So this from the left ventricle. Okay, just remember the previous slides, or you can go back to the previous slides and just have a revision and then come back over here. So see, and this is the red one. So this is the oxygenated blood. So the oxygenated blood from the left ventricle, okay, it is squeezed out through the aorta, okay, into the whole body. And from whole body, when the oxygenated blood is used, so the deoxygenated blood comes back from the inferior and the superior vena cava as well as the coronary sinus to the right atrium. So these two circulation are named as pulmonary circulation and the systemic circulation. Okay, let's move to the next slide. So students, now let's study about the cardiac circulation. ठीक है, तो कार्डियक सर्कुलेशन क्या है कि कुछ ब्लड वेसल्स जो है वो हमारे कार्डियक मसल्स को या फिर हमारे मायोकार्डियम सेल्स को जो ब्लड सप्लाई करते हैं. ठीक है, सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि दिस इज द आयोटा, ओके, एंड इट कैरीज द ऑक्सीजेनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल्स. ठीक है, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि दिस लेफ्ट वेंट्रिकल विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन और सिस्टोल, एंड इट विल स्क्वीज आउट ऑक्सीजेनेटेड ब्लड थ्रू द आयोटा टू द डिफरेंट बॉडी. ठीक है, अब देखिए इसके बेसल पार्ट जो है, इसके बेसल पार्ट से देखिए 2 ब्लड वेसल निकले हैं. सो दिस ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी. ये बहुत पतले होते हैं. ठीक है, बहुत ही पतले होते हैं. सो एंड ये जो ब्लड वेसल्स है ये क्या करते हैं, ऑक्सीजेनेटेड ब्लड जो है हमारे हार्ट के जो मसल्स हैं, ठीक है, हमारे कार्डियक मसल्स जो है उनको ये ऑक्सीजेनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं. ठीक है, जितना भी हार्ट मसल्स है उसको ये ऑक्सीजेनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं. सो अब सोचिए कि ये क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजेनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, एंड ड्यू टू दैट ऑक्सीजेनेटेड ब्लड क्या हो रहा है कि जो मायोकार्डियम सेल्स है, ठीक है, या मायोकार्डियम मसल्स है, ठीक है, वो क्या होगा, वो जिंदा है. ठीक, अब से फॉर सपोज कि यदि
कोई यहाँ पर इंटरप्शन हो गया, इसके ब्लड वेसल्स जो है, इसके ब्लड वेसल के अंदर जो है डायमीटर जो है वो डिक्रीज हो गया बाय एनी मीन्स ऑफ डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल और एनी मीन्स ऑफ डिपोजिशन ऑफ प्लेक, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो कि एक पानी का पाइप है, ठीक है, एंड वो अंदर से जैम हो गया है, ठीक है, तो क्या होगा कि दूसरी तरफ से पानी वो नहीं निकलेगा, इंटरप्टेड हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर आप सोच लीजिए कि ये जो आर्टरी है, ठीक है, आप इसको पाइप जैसा समझ लीजिए, एंड पाइप के बीच में यदि किसी तरह इंटरप्शन हो गया है, ठीक है, तो क्या होगा कि ठीक से जो ब्लड सप्लाई होगा वो इंटरप्टेड हो जाएगा। एंड जैसे इंटरप्शन हो गया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इंटरप्शन हुआ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इंटरप्शन होने के कारण क्या होगा कि ये जो ब्लड सप्लाई यहाँ पर हो रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई, तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पर पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच रहा है, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ नीचे पहुँचा रहा है इस कार्डियक मसल्स को, यहाँ पर जो कार्डियक मसल्स है, ठीक है, इस रीजन में जो कार्डियक मसल्स है, उस रीजन में क्या होगा कि यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहुँच नहीं पा रहा है। एंड जैसे कि आप जानते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड यदि नहीं पहुँच पाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर हाइपोक्सिक कंडीशन होगा, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन डिप्लीशन के कारण क्या होगा, जो मसल्स है वो क्या करेंगे, दे विल अंडरगो डेथ, ठीक है, वो डाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड जब ये यदि ये पार्शियली ब्लॉक्ड है, यदि मतलब पूरी ब्लॉक नहीं हो गया है, तो क्या होगा, यू विल एक्सपीरियंस अ पेन, अ रेडिएटिंग पेन एट योर लेफ्ट आर्म, ठीक है, एंड अ हेवीनेस, ठीक है, भारीपन होगा चेस्ट के ऊपर, एंड एक रेडिएटिंग पेन होगा लेफ्ट आर्म में, विच इज कॉल्ड एंजीना पेक्टोरिस, ठीक है। एंड फर्दर यदि डिपोजिशन और मतलब जो डिपोजिशन है वो ज्यादा हो गया और पूरी तरह ब्लॉक हो गया, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो भी हार्ट मसल्स है, ठीक है, तो हार्ट मसल्स क्या होगा, डाई होगा। अब डाई करेगा तो क्या होगा, उस जो हमारा जो हार्ट है उसको इफेक्ट करेगा, उसके पंपिंग एक्शन को इफेक्ट करेगा, एंड ड्यू टू दैट इट विल कॉज अ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है, जिसको कहते हैं हार्ट अटैक, मतलब डेथ ऑफ द मायोकार्डियम, किसी कोई पोर्शन में डेथ हो जाना, मायोकार्डियम सेल्स का कोई पोर्शन में डेथ हो जाना ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, वहां पर और जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो इम्प्रॉपर होने के कारण वहां डेथ हो जाती है, ठीक है। तो यदि कोई पेशेंट ऐसा प्रॉब्लम लेके आए डॉक्टर के पास कि हाँ उसे हार्ट अटैक हो रहा है या डेपोजिशन हो गया है, ठीक है, और जो डायमीटर है उस आर्टरी का वो डायमीटर डिक्रीज हुआ है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, फर्स्ट तो एंजियोग्राम करते हैं। एंजियोग्राम में क्या होता है कि जो भी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी है, उसका इनर पिक्चराइजेशन करते हैं, ठीक है, अंदर पिक्चर लेते हैं, वीडियो देखते हैं कि कहाँ पर जो ब्लॉकेज हुआ है और कितना परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज हुआ है, ठीक है। सो आफ्टर सीइंग द परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज, यदि ज्यादा परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज है, मल्टीपल ब्लॉकेज है, देन दे विल अंडरगो बाईपास सर्जरी, जिसमें क्या होता है कि वो पोर्शन का, जैसे यहाँ से क्या होगा कि पूरी तरह इसे हटा दिया जाएगा, यहाँ से पूरा ये हटा के एंड पैर से या हाथ से ब्लड वेसल्स को यहाँ ग्राफ्ट कर देते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर पार्शियली ब्लॉक है और मल्टीपल ब्लॉक नहीं है, एक या दो ही ब्लॉक है, तो क्या करते हैं, द डॉक्टर विल अंडरगो एंजियोप्लास्टी, ठीक है। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है कि एक स्टेंट को प्लेस किया जाता है जहां पर डिपोजिशन हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि येलो पोर्शन यहाँ पर डिपोजिशन हुआ है, तो इस डिपोजिशन पोर्शन वाले जगह पे क्या होगा कि स्टेंट को प्लेस करेंगे। स्टेंट क्या है, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, वो चाहे तो प्लास्टिक का भी हो सकता है या फिर वो मेटल का भी हो सकता है, तो उसे यहाँ पर प्लेस किया जाता है ताकि इसके डायमीटर को वापस रिकवर किया जाए, जो भी डायमीटर था पहले। देखिए यहाँ पर क्या है कि डायमीटर बहुत ही कम हो गया है, यहाँ पर डायमीटर ज्यादा है, यहाँ पर कम है, सो इसके डायमीटर को रिकवर किया जा सके तो क्या करते हैं कि इसके अंदर, ये स्टेंट के अंदर पहले तो स्टेंट के ऊपर जो है, ठीक है, ये स्टेंट है, स्टेंट के अंदर आप देख रहे हैं ब्लू जो पोर्शन है दैट इज अ बैलून, ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं स्टेंट विद बैलून एंजियोप्लास्टी। अब क्या करते हैं, उस पोर्शन में ले जाते हैं जहां पर ये ब्लॉकेज हुआ है, एंड देन क्या करते हैं, इस बैलून को फुलाते हैं, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है, इन्फ्लेटेड करना, तो बैलून इन्फ्लेटेड टू एक्सपैंड द स्टेंट। एंड क्या होगा, जब ये बैलून फूलेगा तो क्या होगा कि ये जो ट्यूब है, ठीक है, ये जो ट्यूब जो है ये जैसे ही फूलेगा तो क्या होगा कि द स्टेंट जो है, स्टेंट एक्सपैंड करेगा, एंड स्टेंट जो एक्सपैंड करने के कारण क्या होगा कि जो पैसेज वे था, जो ब्लॉक हो गया था, ठीक है, जो ब्लड पैसेज वे था वो ब्लॉक हो गया था, जिसके कारण अब ये क्या होगा, रिकवर्ड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तरफ से जो भी प्लेक है उसको ढकेल देगा। ओके, होप सो दैट यू अंडरस्टूड दिस। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एक्शन पोटेंशियल, क्योंकि
यदि हमें कार्डियक कंडक्शन सिस्टम जानना है कि जो कार्डियक मसल्स में कुछ कार्डियक फाइबर्स होते हैं, ऑटोरिदमिक फाइबर्स होते हैं, वो फाइबर्स क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करते हैं हमारे हार्ट में, जिसके कारण क्या होता है, पंपिंग एक्शन होता है, ठीक है, जो हार्ट बीट बनाता है हमारे हार्ट में, ठीक है, लेमैन वर्ड्स में आप ऐसे समझ लो। तो उसे यदि आप उसे जानना है यदि आपको कि हार्ट कंडक्शन सिस्टम कैसे होता है, उसमें क्या होता है, तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि एक्शन पोटेंशियल क्या है। तो चलिए पहले देखते हैं कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। तो देखिए मैंने क्या किया कि दो मायोकार्डियम सेल्स लिया, ठीक है, एंड ये दो मायोकार्डियम सेल्स एडजेसेंट है, नेबरिंग मायोकार्डियम सेल्स है, और ये दो मायोकार्डियम सेल्स जो है ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बाय द हेल्प ऑफ गैप जंक्शन। गैप जंक्शन क्या है, ये एक स्पेशल कनेक्शन है इन दोनों के बीच में, ठीक है। और इसी गैप जंक्शन से, इसी कनेक्शन से क्या होता है कि ये दो सेल्स आपस में बात करते हैं। मींस इसमें यदि कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है तो दूसरे सेल्स में वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है वो क्या करेगी, जाएगी, प्रोपोगेट करेगी। सो नाउ बेसिकली जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है कि एट दैट पोटेंशियल, एट दैट वोल्टेज एट विच द मायोकार्डियम सेल्स आर रेस्टिंग, ठीक है, उस वोल्टेज में जहां पर मायोकार्डियम सेल्स रेस्ट कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। तो बेसिकली जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है इन मायोकार्डियम सेल्स, ठीक है, मायोकार्डियम सेल्स में वो नेगेटिव होता है, दैट इज -90 मिलीवोल्ट। और ओके नाउ सी कि यहां पर देखिए कि अंदर इसका मतलब क्या होगा कि अंदर नेगेटिव चार्जेस होंगे, ओके, अंदर नेगेटिव चार्जेस होंगे और बाहर क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस होंगे, बाहर ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे कि ये जो सेल है, दिस पर्टिकुलर सेल इज इन रेस्टिंग स्टेज। लेकिन जब ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा, मींस जब पॉजिटिव आयंस जो है, ठीक है, ओके लेट मी सिलेक्ट द पॉइंटर फर्स्ट। सी अब देखिए कि हम कब बोलेंगे कि दिस सेल जो है इट इज अंडरगोइंग एक्शन पोटेंशियल, मतलब डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन हो रहा है इसमें, ठीक है। कब बोलेंगे, जब क्या होगा कि ये जो अंदर नेगेटिव है तो ये नेगेटिविटी जब लूज करेगा, और कब करेगा, जब पॉजिटिव आयंस अंदर आएंगे, ठीक है। और जब पॉजिटिव आयन जो है अंदर आ रहे हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये जो सेल है इट इज अंडरगोइंग एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो चलिए इसे डिटेल्स में देखते हैं थोड़ा। तो लेट्स सी दिस, ओके नाउ सी क्या होता है कि कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स रहते हैं हमारे हार्ट में जिसे पी सेल्स कहते हैं। और बेसिकली जो पी सेल्स कहां पर होते हैं, ये ऐसे नोड में है, ऐसे नोड मतलब साइनो आर्टरियल नोड, ठीक है। तो साइनो आर्टरियल नोड में जो पी सेल्स है वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं मायोकार्डियम सेल्स को। स्टिमुलेट करने का मतलब यहाँ पर ये है कि कुछ पॉजिटिव कैटायंस जो है, और यहाँ पर पॉजिटिव कैटायंस क्या है, सोडियम आयन, तो वो कैटायंस यहाँ एंट्री करते हैं मायोकार्डियम सेल्स में। और जब ये एंट्री करते हैं तो आप एक लॉजिकली चीज सोचिए कि -90 मिलीवोल्ट था एंड पॉजिटिव आयंस एंटर किया, तो क्या होगा, ये क्या होगा, लेस नेगेटिव की तरफ जाएगा एंड मोर पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, धीरे धीरे ये ग्राफ ऊपर जाएगा। लेस नेगेटिव ये क्या था, -90, तो ये लेस नेगेटिव क्या होगा, लेस नेगेटिव जैसे यहाँ पर -80, -70। सो क्या होगा, एक टाइम होगा जब ये -70 पे पहुंचेगा एंड वो टेम्परेचर क्या हम कहेंगे, दैट थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, मतलब वो पोटेंशियल जिसमें कुछ सोडियम गेटेड, मतलब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो है वो ओपन कर जाएंगे, ठीक है, वो खुल जाएंगे। और उनके खुलने से क्या होगा कि बाहर क्या होता है कि बेसिकली नॉर्मल जो सेल्स रहते हैं वहां पर बाहर सोडियम आयंस ज्यादा रहता है और इनसाइड जो है वो सोडियम आयंस कम रहता है। तो बाहर सोडियम आयंस कम है तो वो क्या होगा, बाहर से सोडियम आयंस जो है वो एंटर करेंगे, क्योंकि चैनल है तो चैनल के थ्रू ये ओपन करेंगे। अब सोच लीजिए कि एक तरह का पाइप है, तो ये पाइप से ये एंटर कर रहे हैं सोडियम आयंस। अब लार्ज नंबर ऑफ सोडियम आयंस जब एंटर करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे ये माइनस से क्या होगा और लेस नेगेटिव होगा, और लेस नेगेटिव से होते होते ये पॉजिटिव भी हो जाएगा, ठीक है। और इस फिनोमिनन को हम लोग कहेंगे कि ये डीपोलराइजेशन, ओके, इसे हम क्या कहेंगे, डीपोलराइजेशन। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि यहां पर कुछ वोल्टेज सेंसिटिव पोटेशियम चैनल जो है वो खुल जाएंगे,
और नॉर्मल सेल्स में क्या होता है, नॉर्मल सेल्स में पोटेशियम आयन जो है वो क्या रहेगा, अंदर जो है पोटेशियम आयन ज्यादा रहेंगे और बाहर पोटेशियम आयन कम रहेंगे। तो अब देखिए कि ग्रेडियंट के हिसाब से क्या होगा कि पोटेशियम आयन बाहर से अंदर से बाहर जाएगा, तो क्या होगा, इफ्लक्स होगा। यहां पर क्या हो रहा था, सोडियम आयंस का इनफ्लक्स हो रहा था और यहां पर क्या हो, इफ्लक्स हो रहा है। तो यहां पर इफ्लक्स होने के कारण क्या होगा कि अब जो पॉजिटिव आयंस था जो अंदर बढ़ रहा था वो क्या होगा, वो लूज करेगा। एंड लूज करने के कारण क्या होगा कि ये जो पॉजिटिविटी गेन हुआ था यहां पर वो लूज करके थोड़ा डाउन आएगा। एंड डाउन आने के कारण ये क्या होगा, 0 मिलीवोल्ट में पहुंचेगा। लेकिन क्या होगा, उस टाइम पे कुछ कैल्शियम वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल भी खुल जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा कि अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि पॉजिटिव आयंस भी निकल रहे हैं और पॉजिटिव आयंस जो है वो घुस भी रहे हैं। तो क्या होगा, इस टाइम पे ये स्टेबल हो जाएगा। मींस ना तो पॉजिटिव आयंस का गेन हो रहा है, ठीक है, ना ही लॉस हो रहा है, ना ही इसके थ्रू लूज कर रहा है, ना इसके थ्रू यहां पर गेन कर रहा है। तो उस टाइम पे ये ग्राफ क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि ये जो दो चैनल्स है ये थक जाते हैं। क्या आप ऐसा सोच लो कि थक जाते हैं, इसका मतलब क्या, ये दोनों बंद हो जाएंगे। अब ये दोनों बंद हो जा रहे हैं तो क्या होगा, लेकिन ये स्टिल ये खुला रहेगा, ठीक है, द पोटेशियम वोल्टेज सेंसिटिव पोटेशियम चैनल ये खुला रहेगा, जिसके कारण क्या होगा कि ये अपना पॉजिटिव जो आयंस है वो लूज करते ही रहेगा। सो पॉजिटिव आयन जो लूज कर रहा है तो क्या होगा, धीरे धीरे ग्राफ जो है वो टुवार्ड्स फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ आएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, रीपोलराइजेशन, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की तरफ जा रहा था इसे हम क्या कह रहे थे, डीपोलराइजेशन, और इसे हम क्या कह रहे हैं, रीपोलराइजेशन। तो एक टाइम आ जाएगा जहां पर ये फिर से रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल को रीच करेगा, ठीक है। तो फिर से ये जो सेल है मायोकार्डियम सेल, तो ये कंप्लीट किया, ठीक है, क्या क्या, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। तो ये कंप्लीशन के बाद क्या होगा कि ये एक्शन पोटेंशियल हुआ, मतलब एक्शन मतलब क्या, मूवमेंट। तो यहां पर मूवमेंट हुआ किसका, चार्जेस का, वोल्टेज का एक मूवमेंट हुआ। तो मूवमेंट के कारण क्या होगा कि यहां पर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कुछ तैयार होगा और इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो होगा वो धीरे धीरे कंडक्ट करके इस गैप जंक्शन के थ्रू ट्रिकल होके इससे निकल के यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर भी सेम फिनोमिनन, यही फिनोमिनन जो होगा यहां पर सेम फिनोमिनन होगा, जिसके कारण ये धीरे धीरे जो इलेक्ट्रिकल ये है कंडक्टिविटी है धीरे धीरे प्रोपगेट करते जाएगा आगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो बेसिकली देखिए सोडियम आयन यहां से अंदर आया और यहां पर भी सेम फिनोमिनन होगा। अब इसके बाद जैसे सोच लीजिए कि इसके बाद एक और मायोकार्डियम सेल, ऐसे फिर और मायोकार्डियम सेल, तो ऐसे धीरे धीरे ये जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है ये क्या करेगा, धीरे धीरे मूव करेगा। मूव करते हुए जहां पर मतलब कंडक्शन कराना है, हार्ट को पंप कराना है, वहां पर ये इलेक्ट्रिक कंडक्शन पहुंचेगा और वहां पर हार्ट को पंप कराएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम एक्शन पोटेंशियल को क्या कह सकते हैं, एक्शन पोटेंशियल को हम क्या कह सकते हैं, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्शन पोटेंशियल। तो हम लोग चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अबाउट द हार्ट कंडक्शन। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, पिक्टोरियली इसे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, इस चीज को ही हम लोग थोड़ा पिक्टोरियली देखते हैं। देखिए ये है एसए नोड, ठीक है। तो ये एसए नोड से क्या हो रहा है, देखिए एरो मार्क्स को फॉलो कीजिए कि देखिए ऐसे ये जो ब्लू वाले जो आप देख रहे हैं बॉर्डर्स, तो ये क्या है, एक एक मायोकार्डियम सेल से। तो देखिए एक मायोकार्डियम सेल से दूसरे मायोकार्डियम सेल, ये क्या हो रहा है कि जो चार्ज है, ठीक है, यहाँ से जो चार्ज बना है, ठीक है, ऐसे नोड से वो धीरे धीरे वो चार्ज धीरे धीरे आगे प्रोपोगेट कर रहा है और प्रोपोगेट करते हुए पूरे मायोकार्डियम सेल्स में पहुंचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फोकस ओवर हियर, यहाँ पर देखिए कि मैं कुछ कनेक्शन का बात कर रहा था पिछले स्लाइड में। तो ये जो कनेक्शन है, दिस इज द कनेक्शन जहां से क्या होता है, चार्जेस क्या करते हैं, ट्रिकल्स करते हैं, मतलब निकल के आ जाते हैं इस सेल्स में। तो ये जो चार्जेस है यहाँ पर आ गए और यहाँ पर भी क्या होगा, सेम फिनोमिनन फिर से होगा, फिर से वो एक्शन पोटेंशियल होगा, फिर से वो ग्राफ क्या होगा, डीपोलराइज होगा, फिर रिपोलराइज होगा। तो ऐसे ही करके क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन वो आगे बढ़ेगा। चलिए इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। Electrical connection between cardiac muscle cells and action potential generated spontaneously in cells of SA node spreads to the adjacent muscle cells by means of electrical current passing, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो पास कर रहा है एक सेल से दूसरे सेल्स थ्रू द गैप जंक्शन इन इंटरकैलेटेड डिस्क। कहां पर है ये इंटरकैलेटेड डिस्क, मतलब ये ब्लू वाला जो बॉर्डर दिख रहा है दैट इज द इंटरकैलेटेड डिस्क, ओके। सी नाउ a schematic view of the junction
between two adjacent muscle cells showing a gap junction and a desmosome। ठीक है, गैप जंक्शन तो आपको पता ही है कि एक स्पेशल कनेक्शन है दोनों सेल्स के बीच में, और डेस्मोसोम क्या करता है, दोनों को जोड़े रखता है, दो मायोकार्डियम सेल्स को दोनों को जोड़े रखता है, एक सीमेंट काइंड ऑफ मटेरियल है ये। ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड बढ़ते हैं। नाउ वी विल सी द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। तो बेसिकली कार्डियक कंडक्शन सिस्टम में क्या होता है, देखिए यहाँ पर कुछ फाइबर्स आपको दिख रहे हैं। सो दिस आर द मींस सम स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर्स। ठीक है, दिस आर द नेटवर्क ऑफ द ऑटोरिदमिक फाइबर्स। ऑटोरिदमिक मतलब जो अपने आप रिदम पैदा करता हो। ठीक है, तो ये ऑटोरिदमिक फाइबर्स है जो क्या करते हैं, रिपीटेडली एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल मतलब मैंने बताया था डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन, मतलब एक वोल्टेज का फ्लक्चुएशन, जो फ्लक्चुएशन होता है जिसके कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल करंट बनता है। तो वो इलेक्ट्रिकल करंट क्या होगा, धीरे धीरे प्रोपोगेट करेगा थ्रू दिस फाइबर्स। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है कि ये जो है साइनो आर्टेरियल नोड, ऐसे नोड, तो यहाँ पर जो भी करंट यहाँ पर बनता है, ठीक है, दे आर ऑटोरिथमिक। तो यहाँ पर करंट बना और वो करंट क्या होगा, धीरे धीरे प्रोपोगेट करेगा। सी द एरोज, देखिए यहाँ पर एरो देखिए। तो पहले क्या होगा, दिस एरो, ये और ऐसे नोड से जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है वो क्या होता है, मॉडरेट स्पीड में होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत तेज या बहुत स्लो, मॉडरेट स्पीड में होगा। और मॉडरेट स्पीड में क्यों होता है, ताकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है वो पूरे आर्टरियम के मसल्स में पहले पहुंचे, क्योंकि आर्टरियम को पहले कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, पहले वो सिस्टोल, उसमें सिस्टोल में जाता है, उसके बाद जो वेंट्रिकल है उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ऐसा नहीं कि आर्टरियम और वेंट्रिकल जो है वो दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, तब तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि पहले जो आर्टरियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो कौन करवाता है इसे, तो ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है जो इस फाइबर से निकल रहा है, तो वो मॉडरेट स्पीड में निकलता है। और क्यों निकलता है, ताकि पहले ये जो इलेक्ट्रिकल करंट है पहले आर्टरियम के मसल्स, मायोकार्डियम सेल्स ऑफ द आर्टरियम में पहुंचे। उसके बाद जैसे ये पहुंचता है और उसके बाद क्या होता है कि आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, और तब तक क्या होता है कि एवी नोड में ये करंट पहुंच जाता है। और एवी नोड से जो करंट है वो बहुत ही स्लो स्पीड में जाता है। ठीक है, मैं रीजन बताऊंगा कि क्यों होता है ऐसा। तो ये फिर बहुत ही स्लो मतलब स्पीड में ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोपोगेट करवाता है। और क्यों कराता है, ताकि आर्टरियम को पूरा टाइम मिल जाए कि ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट करे। ठीक है, उतना टाइम इसे मिल जाता है। एंड जब इसे पूरा टाइम मिल गया, देन व्हाट हैपेंस कि ये जो है, दिस आर बंडल ऑफ हिज। ठीक है, बंडल ऑफ हिज ये जो है, ओके, दिस आर द बंडल फाइबर्स। ओके, और बंडल ऑफ हिज, अब ये बंडल ऑफ हिज में देखिए ये करंट आ रहा है। एंड देन ये बंडल ऑफ हिज में क्या होता है कि ये जो करंट होता है वो बहुत ही फास्ट, ठीक है, बहुत ही स्पीड में वो क्या होता है कि प्रोपोगेट करता है पूरे हार्ट में, ताकि क्या हो कि जैसे ही आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करे कि तुरंत वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे। क्योंकि आर्टरियम से क्या होगा, जो ऑक्सीडेंटेड ब्लड या डीऑक्सीडेंटेड ब्लड है वो क्या होगा, स्क्वीज्ड आउट होगा वेंट्रिकल में। अब तो वेंट्रिकल तो भर गया है, अब वेंट्रिकल को पहुंचाना है जो भी उसके अंदर ब्लड है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, थ्रू दिस इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो इसमें हो रहा है। देखिए, और ये जो लास्ट जो है, ये इसे हम क्या कहेंगे, परकंजी फाइबर्स। तो ये परकंजी फाइबर्स जो है, ये परकंजी फाइबर्स क्या करता है, इस इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को पूरे वेंट्रिकल के जो मसल्स है, ठीक है, उसमें पहुंचाते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे इसको। देखिए ये पहुंच गया। नाउ द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम, इसे हम थोड़ा सा फ्लो चार्ट में देखेंगे। तो पहले क्या होता है, ऐसे नोड जो है, जो पेस मेकर है, वो क्या करता है, मॉडरेट प्रोपोगेशन करवाता है, मॉडरेट स्पीड में प्रोपोगेशन कराता है, ताकि जो एक्शन पोटेंशियल है, और वो एक्शन पोटेंशियल जो वो ट्रैवल करता है किससे, गैप जंक्शन से। ठीक है, गैप जंक्शन से गया, तो पहले क्या हुआ, पहले जो आर्टरिया है वो कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, देन जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया, उसके बाद क्या होता है कि अब एवी नोड में कार्डियक एक्शन पोटेंशियल वो पहुंचेगा। अब कार्डियक एक्शन पोटेंशियल पहुंचा कहाँ, एवी नोड में। और एवी नोड थोड़ा सा क्या करेगा, उसे डिले कर देगा, वो थोड़ा ढीला है। ठीक है, एवी नोड, तो एवी नोड क्या करेगा, थोड़ा सा लेट में इसे प्रोपोगेट करेगा, ताकि टाइम मिल जाए आर्टरिया को, फुल टाइम मिल जाए ये कि ये कॉन्ट्रैक्ट करे पहले। देन क्या होगा कि ये अब प्रोपोगेट करेगा एक्शन पोटेंशियल को, कार्डियक एक्शन पोटेंशियल को। नाउ और ये जो प्रोपोगेशन होगा ये क्या होगा, डिलेड प्रोपोगेशन। अब ये प्रोपोगेशन करके कहां पहुंचाया अपने इलेक्ट्रिक करंट को, ये पहुंचाया कहां पर, द बंडल ऑफ हिज। ठीक है, बंडल ऑफ हिज में पहुंचा दिया। लेकिन अब बंडल ऑफ हिज से क्या होगा, बहुत फास्ट प्रोपोगेशन होगा। देखिए फास्ट प्रोपोगेशन हुआ, और ये फास्ट प्रोपोगेशन होकर परकंजी फाइबर्स में पहुंचाया। परकंजी फाइबर्स भी यहाँ पर फास्ट प्रोपोगेशन करके क्या करेगा, पूरे हार्ट मसल्स में पहुंचा देगा इसे। देन क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो वेंट्रिकल से वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे।
ये जो टाइम लगता है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, मींस ऐसे नोड में बना, पहले जो आर्टरी है वो कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, ये जो फुल टाइम लगता है, ये टाइम कितना होता है 0.8 सेकेंड। मतलब एक बीट जो होता है, वन हार्ट बीट जो होता है, वो कितने सेकंड्स में होता है 0.8 सेकेंड में होता है। मतलब कि यहां से लेके यहां तक टाइम कितना लगता है जो इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट करने में है 0.8 सेकेंड, ठीक है। और एक मिनट में कितना बीट होता है 72 बीट्स पर मिनट, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो कि एक बीट जो है वो 0.8 सेकेंड में हो रहा है, तो पर मिनट में कितना बीट्स होगा। ओके, तो चलिए अब इसे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, आप इसको फॉलो कीजिएगा। पहले यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल करंट जो है पहले वहां बना, ठीक है। तो पहले देखिए पहले कि ये जो आर्ट्रियम है, इस आर्ट्रियम में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पहले पहुंचेगा, ना कि यहां से यहां तक, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिले हो रहा है, यहाँ पर सी इन एवी नोड यहाँ पर क्या हो रहा है, डिले होगा, ठीक है। और डिले क्यों हो रहा है, ताकि यहां से जो इलेक्ट्रिकल करंट पहले पहुंचे। और देखिए ये पहुंच रहा है तो पहले जो आर्ट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ कर रहे हैं। देखिए ये जो आर्ट्रियम है, ये आर्ट्रियम है, तो ये आर्ट्रियम दोनों पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके बाद जो है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर जो ब्लड है, डीऑक्सीजेंटेड ब्लड जो है राइट एट्रियम में, वो यहाँ पर स्क्वीज आउट कर दे रहे हैं, और इस तरफ जो ऑक्सीजेंटेड ब्लड है लेफ्ट एट्रियम में, वो इसकी स्क्वीज आउट कर रहे हैं। फिर जैसे स्क्वीज आउट हो रहा है, जैसे ही ये वेंट्रिकल भर रहा है, ठीक है, जैसे ये वेंट्रिकल भर रहा है, तो देखिए एवी नोड से क्या कर रहा है, यहाँ पर उस इलेक्ट्रिकल करंट को प्रोपोगेट करवा दे रहा है थ्रू बंडल ऑफ हिस एंड देन थ्रू द परकिंजी फाइबर्स। जैसे परकिंजी फाइबर्स में ये पहुंच रहा है, तो अब जो वेंट्रिकल है वो भी क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या हो रहा है, इसके अंदर जो ब्लड है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, निकल जा रहा है थ्रू द आयोटा एंड द पल्मोनरी ट्रंक। ओके, ये जो है पल्मोनरी ट्रंक है जो हमारे लंग्स में चला जाता है, एंड यहाँ से जो आयोटा जो है, ये आयोटा से पूरे बॉडी में ब्लड चला जाता है, ऑक्सीडेंटल ब्लड चला जाता है, ठीक है। नाउ सी द थिंग कि मैं बोल रहा था कि क्यों, मतलब यहाँ से मॉडरेट प्रोपोगेशन होता है, यहाँ पर स्लो डिलेड प्रोपोगेशन होता है, और यहाँ फास्ट होता है। जैसे मैं बताया था गैप जंक्शन के बारे में, तो गैप जंक्शन देखिए यहाँ पर क्या होता है, इस फाइबर्स में, यहाँ पर जो फाइबर्स है, यहाँ पर जो फाइबर्स है, यहाँ पर जो गैप जंक्शन होंगे, वो गैप जंक्शन क्या होंगे, वहाँ मीडियम होंगे, ठीक है, मीडियम अमाउंट में गैप जंक्शन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो गैप जंक्शन होते हैं वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट के गैप जंक्शन होंगे। एवी नोड में जो गैप जंक्शन होंगे वो बहुत कम होंगे, ताकि क्या हो कि कम स्पीड में पहुंचे, ठीक है। जो पॉजिटिव आयन है वो ट्रिकल्स हो रहे थे, भाग जा रहे थे दूसरे मायोकार्डियम सेल में, तो वो कम हो। लेकिन फास्ट में क्या होगा कि यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ गैप जंक्शन होगा बिटवीन सेल्स, तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। सो देखिए यहाँ पर स्लो है, यहाँ पर थोड़ा मॉडरेट है, यहाँ पर थोड़ा डिलेड है, एंड यहाँ पर देखिए बहुत जल्दी हो रहा है। ओके, आई होप दैट यू गॉट इट। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग ने देखा कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। तो जो कार्डियक कंडक्शन सिस्टम है उसमें हम लोग ने जाना कि हार्ट से कुछ इलेक्ट्रिकल करंट्स निकलते हैं, ठीक है, एंड जिसके कारण क्या होता है कि पंपिंग एक्शन होता है, ठीक है। तो इसी इलेक्ट्रिक करंट्स को जब हम लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो उसे हम कहते हैं ईसीजी, ठीक है। तो ईसीजी क्या है, ईसीजी इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड इट इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल क्या था कि ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा था, डिपोलर मतलब डिपोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन हो रहा था, जो वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हो रहा था, तो उसको हम लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे। सो इट इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ द एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय द हार्ट मसल्स फाइबर, ओके, हार्ट मसल फाइबर ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट, ठीक है। तो ईच हार्ट बीट जब होता है, ईच हार्ट बीट कब होता है 0.8 सेकंड में, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार प्रीवियस स्लाइड्स में जाइए, ठीक है, पॉज करके उसे देखिए, देन इसमें आइए, ठीक है। तो इसमें देखिए कि क्या हो रहा है कि एक हार्ट बीट है, तो एक हार्ट बीट मतलब 0.8 सेकंड हो रहा है। तो ये जो एक ग्राफ दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ये एक ग्राफ मतलब ये 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग और अच्छे से देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आदमी है इसका जैसे ईसीजी हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो रहा है इसका। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसके चेस्ट पे कुछ लीड्स लगाए गए हैं, ठीक है। और बेसिकली ये जो लीड्स है दे आर द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। और इलेक्ट्रोड्स को लगाया गया है क्यों, ताकि यहाँ से जो इसके हार्ट से जो इलेक्ट्रिकल करंट निकल रहा है उसको वो रिकॉर्ड कर सके, ठीक है। तो कुछ चेस्ट लीड्स लगते हैं एंड कुछ लिम्ब लीड्स लगते हैं, जो कि हाथों और पैरों में लगाया जाता है। एंड उसके बाद क्या होता है कि ये इंस्ट्रूमेंट में कनेक्टेड होता है, और वो इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, वो डिफ्लेक्शन को, वो जो वोल्टेज का जो डिफ्लेक्शन है, जो मतलब जो एक फ्लक्चुएशन है, उस फ्लक्चुएशन को रिकॉर्ड करता है।
और इससे हमें पता चलता है कि किसी के हार्ट में जो यदि कुछ कंडक्शन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ डिफॉर्मिटी आ रही है, तो वो हमें ईसीजी से मिल जाएगी कि हाँ उसके ईसीजी में यदि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि इसके हार्ट में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। तो जो इंस्ट्रूमेंट है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जिसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ, और इस ग्राफ में आप देख लीजिए कि ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, पी वेव, इसे हम और एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो है ये पी वेव है, ओके, और ये थोड़ा नीचे डिफ्लेक्शन जो आ रहा है दैट इज द क्यू, ठीक है। यहां से लेके क्यू से एक क्या होता है, ओवरशूट होता है, तो क्यू आर एस एक है, ठीक है, एक इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद टी होता है, ठीक है, एक टी वेव आता है। तो पी वेव, एक क्यू आर एस वेव एंड टी वेव। तो इसे ये क्या है और कब होता है इसे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप देखिए यहाँ पर पी आर इंटरवल है, देन आपका इधर एस टी सेगमेंट है एंड क्यू टी इंटरवल है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है इसे थोड़ा हम देख लेते हैं कि पी आर इंटरवल क्या है, टाइम टेकन बाई एवी नोड, ठीक है, टू कंडक्ट अ इम्पल्स, ठीक है। तो आप एक बार फिर से एक बार प्रीवियस स्लाइड में जाइए, देखिए कि एवी नोड कितना टाइम लेता है एक इंपल्स को जनरेट करके भेजने में, ठीक है। तो वो ये यहाँ से जो पी वेव खत्म हो रहा है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि एवी नोड कितना टाइम ले रहा है उसका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। देन ठीक है, ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, यहाँ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, ये तो एक ओवरशूट है, और ये कब होता है और क्यों होता है बोलो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब देखिए कि ये जो एस टी सेगमेंट है, एस टी सेगमेंट कब होता है एंड क्यों होता है, द टाइम गैप बिटवीन द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, ठीक है। मतलब वेंट्रिकल्स जब अंडर व्हेन इट विल अंडरगो डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन मतलब उसमें पॉजिटिव आयंस अंदर आ रहे हैं, एंड रीपोलराइजेशन मतलब जो उसमें पॉजिटिव आयंस बाहर जा रहे हैं, मतलब फिर से वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रीच कर रहा है, ठीक है। तो वो टाइम गैप है, और इसका मतलब क्या है कि जब वो एक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, ठीक है, मतलब व्हेन इट विल अंडरगो सिस्टोल एंड डायस्टोल, ठीक है। तो वो टाइम पीरियड, वो टाइम गैप को कौन शो कर रहा है, एसटी सेगमेंट, मतलब ये वाला सेगमेंट, ठीक है। ये सेगमेंट क्या शो कर रहा है कि डायस्टोल और सिस्टोल, मतलब पहले तो सिस्टोल होगा, उसके बाद क्या होगा कि ये डायस्टोल में जाएगा, मतलब रिलैक्स करेगा वेंट्रिकल। और ये जो सेगमेंट है क्यूटी इंटरवल पूरा यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये क्या बताता है, ये बताता है एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ वेंट्रिकल्स एंड रिटर्निंग टू द रेस्टिंग पोटेंशियल। मतलब ये बताता है कि एक हार्ट में मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है, ठीक है, उसका एक्टिवेशन और फिर से वापस रेस्टिंग पोटेंशियल को रीच करना, ठीक है। तो वो उसको बताता है कौन, क्यूटी इंटरवल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सी, तो पहले हम लोग ने बताया कि पी वेव आता है, तो देखिए ये पी वेव है, ओके, दिस इज द पी वेव, एंड कब हो रहा है, अब देखिए यहां पर येलो जो है, येलो जो कलर है वो क्या शो कर रहा है, डीपोलराइजेशन, एंड रेड शो कर रहा है रीपोलराइजेशन। तो यहां पर देखिए येलो है, मतलब ये अंडर दैट इज अंडरगोइंग डीपोलराइजेशन, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहां से अब आगे प्रोपोगेट करेगा आगे, देखिए एरो मार्क्स देखिए प्रोपोगेट कर रहा है कहां से, साइनो आर्टेरियल नोड से, ओके, ऐसे नोड से प्रोपोगेट कर रहा है। तो देखिए, तो जैसे ही प्रोपोगेट कर रहा है तो पी वेव बना हमारा, ठीक है। तो एक देखिए यहाँ पर एक वेव बन रहा है, तो पी वेव कब बनता है, जब आर्टेरियल डीपोलराइजेशन होता है, इनिशिएटेड बाय द एसए नोड कॉज द पी वेव, ठीक है। तो आर्टेरियल डीपोलराइजेशन इनिशिएटेड बाय द एसए नोड कॉजेज द पी वेव, ओके। नाउ सेकंड देखिए क्या हो रहा है कि ये जो सेगमेंट है, देखिए पीछे जाते हैं, ये जो पी आर सेगमेंट है, ये पी आर सेगमेंट कब होता है, देखिए, सो द पी आर सेगमेंट कब होता है, द आर्टेरियल डीपोलराइजेशन कंप्लीट होता है पूरा, मतलब यहां पर ये पूरा डीपोलराइज हो जाता है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, डीपोलराइज मतलब यहां पर पूरा इलेक्ट्रिकल करंट अब यहां पर फैल गया है, तो आर्टेरियल डीपोलराइजेशन कंप्लीट होगा एंड द इंपल्स इज डिलेड एट द एवी नोड, और यहां पर अब रुका हुआ है, ठीक है। अब ये एवी नोड क्या है कि यहां पर स्लो हो जाता है, डिले होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, तो अब यहां पर रुका हुआ है, डिलेड एट एवी नोड, तो इसलिए यहां पर एक स्ट्रेट आपको दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी यहां पर रुका हुआ है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, क्यों, ताकि ये आरटीएम को टाइम मिल जाए। नाउ सी, अब ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, यहां पर एक ओवरशूट देख रहे हैं, एकदम से क्या हो रहा है, ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है, तो कब होता है ये, व्हेन वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बिगिंस, कब होता है, वेंट्रिकुलर
depolarization begins causing the QRS complex and arterial repolarization occurs। अब क्या हो रहा है देखिए, अब रेड देखिए, रेड क्या है, रेड क्या बताता है, रिपोलराइजेशन। देखिए अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये रिपोलराइज्ड हो रहा है, मतलब ये रिलैक्स करेगा। एंड अब रेड, अब देखिए येलो वाला जो है ये क्या है, डिपोलराइजेशन हो रहा है। अब यहाँ से एवी नोड यहाँ पर रुका हुआ था, थोड़ा देर डिले किया, और अब फिर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो है ये धीरे धीरे नीचे आएगा ताकि वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन शुरू हो जाए। अब देखिए यह शुरू हो गया, तो ये हमें दिया क्या, QRS कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये QRS कॉम्प्लेक्स कौन देता है, द वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन जब बिगिन होता है, ऐसा नहीं कि हो गया है पूरा कंप्लीट, बिगिन होता है जब, कॉजिंग द QRS कॉम्प्लेक्स। एंड व्हेन द एट दैट सेम टाइम क्या होता है कि आर्टेरियल रिपोलराइजेशन होता है, मतलब आर्टेरिया जो होता है वो रिलैक्स करता है। नाउ अब ये वाला जो सेगमेंट है, ठीक है, फिर से एक बार जाते हैं पीछे। देखिए यहां पर ST सेगमेंट देख रहे हैं, दिस इज द ST सेगमेंट। नाउ सी, तो ये जो ST सेगमेंट है यहां पर, ये कब होता है, व्हेन वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखिए कि वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखिए ये पूरा येलो हो गया, मतलब यहाँ पर वेंट्रिकुलर जो है ये डिपोलराइज्ड हो गया, मतलब अब वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए है, पूरी कंप्लीट हो गया, डिपोलराइज्ड अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया ये। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये रिपोलराइज करना शुरू हो जाए, क्योंकि डिपोलराइजेशन के बाद क्या होगा, अब मसल्स जो है वो रिपोलराइज्ड होंगे। ठीक है, तो देखिए अब रिपोलराइजेशन रेड देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो जो रिपोलराइज्ड हो रहा है, ड्यू टू दैट ये टी वेव आता है। ये जो टी वेव आ रहा है ड्यू टू दिस रिपोलराइजेशन, मतलब वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन बिगिंस कॉजिंग द टी वेव, तो टी वेव इसलिए जनरेट होता है। देन क्या होगा कि ये धीरे धीरे पूरा रिपोलराइज्ड हो जाएगा। सो ये आपको ये सेगमेंट दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, तो फाइनली द वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन इज कंप्लीट। सो यहां से लेके P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स एंड T वेव, ये पूरा जो है ये 0.8 सेकंड में होता है। और कैसे होता है, तो ये तो आपके सामने है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ने देखा नॉर्मल ECG कि नॉर्मल ECG जो ग्राफ होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए, लेकिन यदि कुछ एबनॉर्मल ECG है तो उसे हम लोग कैसे विजुलाइज करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि हाँ हमारा जो ECG है वो एबनॉर्मल है। ठीक है, तो जब आपको यदि किसी का ECG मिलता है तो आप अब देख सकते हैं कि हाँ कि कुछ एबनॉर्मलिटी हुई है कि नहीं, उसके ग्राफ से देख के आप पता लगा सकते हैं। तो देखिए ये है एक नॉर्मल ECG। ठीक है, जिसमें P वेव जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, वो क्या है कि नॉर्मल P वेव है। QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो भी नॉर्मल है। ST जो है, ठीक है, ये भी नॉर्मल है। देन ये T वेव भी नॉर्मल है। नाउ अब देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी जो है यहाँ पर दिख रहा है कि सब एंडोकार्डियल इश्चीमिया, एक्यूट सब एंडोकार्डियल इश्चीमिया एंड ट्रांसम्यूरल इश्चीमिया। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब किसी को हार्ट अटैक होता है, ठीक है, हार्ट अटैक क्यों होता है, तो यदि उसके जो मसल्स है, जो मायोकार्डियम मसल्स है, उसमें कुछ डिफॉर्मिटी होती है या कुछ डैमेज होता है। ठीक है, तो दैट्स वाई क्या होता है कि ये ग्राफ जो है, इस ग्राफ में कुछ एबनॉर्मलिटी दिखती है, कुछ डिफॉर्मिटी दिखती है आपको। तो देखिए जैसा पहला है एस्टीमाई बोलते हैं इसको, एस्टीमाई, इसे हम सब एंडोकार्डियल इश्चीमिया भी कहते हैं। तो इसमें देखिए सब एंडोकार्डियल इश्चीमिया में क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए फोकस किए है हार्ट का, ये वेंट्रिकुलर मसल्स है। तो ये वेंट्रिकुलर मसल्स को, ये जो रेड पोर्शन है ये वेंट्रिकुलर मसल्स में, ठीक है, इसके अंदर तरफ एंडोकार्डियल मतलब अंदर। ठीक है, हम लोग ने जो लेयर्स पढ़े थे हार्ट के, तो उसमें देखा था कि एंडोकार्डियम जो होता है वो अंदर होता है। तो यदि एंडोकार्डियम में यदि किसी तरह डैमेज हो जाए वो, ठीक है, तो क्या होगा कि हार्ट कंडक्शन जो है, जो ECG है, वो ECG कैसा दिखाएगा कि ये जो ST है, ST कैसा है, यहाँ पर स्ट्रेट है, वो देखिए ST यहाँ पर थोड़ा सा डिप्रेशन आ गया है यहाँ पर। ठीक है, तो आप किसी का ECG यदि देखेंगे तो ECG में देख के आप पता लगा सकते हैं कि यदि ST डिप्रेशन हुआ है तो हम कह सकते हैं कि उनको क्या हुआ है, सब एंडोकार्डियल इश्चीमिया हुआ है। ठीक है, देखिए क्या होता है, ST डिप्रेशन हुआ, डिप्रेशन हुआ। अब और यदि एक्यूट मतलब अचानक से हो जाए, ठीक है, तो देखिए अचानक से यदि हो जाए तो वो थोड़ा सा क्या होगा, ऐसा नहीं कि अचानक से यहाँ पर सब एंडोकार्डियल इश्चीमिया में क्या हो रहा था, ये अचानक से ये ग्राफ थोड़ा डिप्रेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये डिले होकर फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। तो एक्यूट और सब एंडोकार्डियल इश्चीमिया में यही डिफरेंस है कि यहाँ पर थोड़ा सा ST डिले होगा, देन क्या होगा, ये आपको जो T वेव जो है, ठीक है, वो T वेव क्या होगा, अंदर चल जाएगा। ठीक है, वो T वेव अंदर चल जाएगा। ST जो है वो सीधा ही रहेगा, लेकिन T वेव जो है वो अंदर जाएगा। तो T वेव क्यों अंदर जा रहा है, ठीक है, T वेव इसलिए अंदर जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो T वेव क्या बता रहा था, रिपोलराइजेशन हो रहा था। तो रिपोलराइजेशन जो हो रहा है हार्ट मसल्स में वो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो रहा है कि ये जो T वेव जो है, ठीक है, ये T वेव डिप्रेस हो जा रहा है। ठीक है,
नाउ अब सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया और ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया में क्या डिफरेंस है? ठीक है, ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया में क्या होता है कि ये जो एसटी जो है, ठीक है, एसटी एलिवेशन हो जाता है, एसटी ऊपर चल जाता है। यहाँ पर एसटी स्ट्रेट, यहाँ पर डिप्रेशन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एसटी जो है वो क्या हो रहा है, ऊपर चल जा रहा है। क्यों होता है कि यहाँ पर जो एंडोकार्डियल हुआ था, ठीक है, अंदर का जो हार्ट लेयर था, ठीक है, हार्ट का जो मतलब लेयर है, उसमें कुछ डैमेज हुआ था। यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो पूरी वो एरिया, ठीक है, ये एरिया जो है रेड पोर्शन देख रहे हैं, ये एरिया पूरा डैमेज हो गया, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर एक एसटी एलिवेशन हो जाता है। तो आप पता लगा सकते हैं किसी का ईसीजी देख के कि उसे क्या हुआ है, या उसे क्या ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया हुआ है, उसके कारण हार्ट बीट मतलब जो हार्ट अटैक हो रहा है। अब हार्ट अटैक हो रहा है तो कहाँ पर प्रॉब्लम है वो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, यदि किसी का ग्राफ यदि एलिवेटेड है तो आपको पता लगेगा कि हाँ, उसका जो वेंट्रिकुलर मसल्स है वो पूरी डैमेज हो गया है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर सिर्फ एंडोकार्डियल जो है वो डैमेज हुआ है, जिसके कारण ये एक डिप्रेशन हुआ है। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए, हमारा आज का जो सेशन है वो तो कंप्लीट हुआ, लेकिन आपके लिए कुछ होमवर्क है। तो होमवर्क क्या है कि पहला जो क्वेश्चन है आपका कि व्हाट विल बी द डेविएशन ऑफ ईसीजी ड्यूरिंग एक्सरसाइज और स्लीप। ठीक है, चलिए एक बार पीछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए कि आपको बताना है कि इस ग्राफ, ये जो ग्राफ है, ये जो ईसीजी का जो ग्राफ है, तो इस ग्राफ में कहां पर डिफॉर्मिटी आएगी। ठीक है, जब हम लोग सोते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम में कहां पर डिफॉर्मिटी आएगी। ठीक है, मतलब कहां पर वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल जो है, नॉर्मल से कहां पर थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, नाउ दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज अ हार्ट विद अ फ्लैटर टी वेव इंडिकेट्स। ठीक है, यदि टी वेव जो है, ठीक है, हमारा जो टी वेव है, सी ये टी वेव है हमारा, तो ये टी वेव जब फ्लैटर हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि डिप्रेस हो जा रहा है या एलिवेट हो जा रहा है, ऐसा नहीं, ये जब फ्लैट हो जाएगा तो वो क्या बताता है, ठीक है, वो क्या इंडिकेट करता है। तो ये तो रहा आपका 2 होमवर्क, एंड आप इसका सोल्यूशन जो है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एंड यदि आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहते हैं तो वो फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमें मेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू एंड स्टे सेफ।